Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB, and today in this session we will be doing something that is very important, and it comes every year, almost every year, either in prelims or in mains in your exams, and that is very essential when we are talking about uh, getting a good cutoff in your English section. So what is that topic, friends? Let's see that. And it comes in English section, as I said, and it will be helpful for you in all your banking and regulatory body exams. So and that topic is actually closed passage, and some call it closed test as well. Now here in these type of questions, we all know that a passage is given and that passage has certain blanks, right? So we have to fill those blanks with certain options that are given us for each blank, right? So this is a very important topic, and it is rather an easy version of fill in the blanks, because in fill in the blanks the sentences are individual, but in closed passage we have one entire paragraph, and it makes a difference because when we read the entire paragraph, we know that we can get a hint by reading that what is the context of the entire paragraph, what the author is trying to convey, and with that knowledge we are able to fill the blanks that are provided to us. So this is one very important topic. So if this year also you're appearing for your banking exam, if you had already appeared for your IBPS PO prelims, then your mains are just about to be here, and do not wait for the result of your prelims. All right, so this is a big advice that if you will start your preparation after getting the result of prelims, then the time will be very less, right? So start your preparation, in fact continue your preparation, do not pause it in between. So धीरे धीरे पढ़ते रहें, and because your aim is to get that job, right? And the process has not stopped yet, तो इसलिए आप पढ़ते रहें. And close passage is one very important topic, because ये आ ही जाता है, या तो प्री में आ जाएगा या आपके मेंस में आ जाएगा, राइट? एंड ऑल्सो जैसे रेगुलर हम ऐसे पैटर्न्स देखते थे जो हमारे क्लोज टेस्ट के थे, जिसमें एक पैराग्राफ गिवन होता था और उसमें ब्लैंक्स होते थे. बट नाउ अ न्यू पैटर्न हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, IBPS में ही हमने देखा था, और अब तो काफ़ी एग्जाम्स में आने लग गया है, वेयर विद द ब्लैंक one other word is given, suggested along with the blank, right? तो या तो उस ब्लैंक में वही वर्ड आएगा, या आपके गिवन ऑप्शंस जो हैं, 5 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस में एक्चुअली वर्ड्स होते हैं. लास्ट वाला ऑप्शन होता है नो चेंज इज रिक्वायर्ड या नो रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड. सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और हम अभी वो डिस्कस कर रहे हैं. सो क्लोज टेस्ट या क्लोज पैसेज केवल एक पैटर्न का नहीं होता है, देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न टू इट, और वो भी हम आज देखेंगे. So friends, about the zero से PO, this is our series. Even if you start from scratch with us in this free series for you, you will be able to know what are the type of questions that come in the exam, and also उनको solve कैसे करना है, how to solve them, right? और उससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाती है. You are able to get a hold of or get acquainted to what kind of questions you can expect when you face the exam this year. All right, तो इस बात का ध्यान रखें, ये बिल्कुल फ्री सीरीज़ है, और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर एवरी डे एट 4 PM वी ब्रिंक दीज क्वेश्चंस, दिस सेशन. आप हमसे अपना डाउट भी पूछ सकते हैं वहाँ पे, राइट? सो इट इज़ अ वेरी नॉलेजेबल सीरीज़, और क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर गिविंग ऑल योर टाइम टू स्टडीज़, तो 1 घंटा आप अपना स्टडी का यहाँ दें, सो दैट आपका सारा प्रैक्टिस यहाँ हो जाएगा, एंड यू विल नो दैट वेयर आर यू स्टैंडिंग. ऑलराइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. Okay, so friends, let's start with closed passage now. So here these are the options, and the sentence, the passage says
a sound business environment dash that the government adheres to the basic rules of justice at all times. So क्या होता है? A sound business environment dash what. अब एक बात ध्यान रखें, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात है यहाँ पर. हमेशा आपको देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका वर्ब से अग्री करना चाहिए. तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट. सो बिजनेस एनवायरनमेंट सिंगुलर है तो आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर होना चाहिए. और सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं? जिसके एंड में एस आता है वो सिंगुलर वर्ब्स होते हैं. तो यहाँ पे क्या नहीं है? डिमांड जो है वो एक प्लूरल वर्ब है. ऑलराइट, तो इसीलिए डिमांड यहाँ पर नहीं आ सकता है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. So it says a sound business environment dash that. So requires, उसकी एक need है, right. So want is different than requirement. ठीक है, require है जो एक basic चीज़ है and want is above that, right. So require यहाँ पर आएगा requires. all right, a sound business environment requires that the government adheres to the basic rules of justice at all times, handing out extremely dash punishment on suspect companies without giving them so and so. So जब वो कह रहे हैं extremely dash तो मतलब कैसी होगी? हार्श होगी, वॉलेटाइल नहीं होगी. वॉलेटाइल मतलब जो कि बहुत जल्दी चेंज हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है, राइट. सो वॉलेटाइल नहीं होगी. स्मूथ सॉफ्ट नहीं होगा बिकॉज ये लाइट वर्ड्स है. बट यहाँ पर बात क्या हो रही है? कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे. सो इट इज सेइंग हैंडिंग आउट एक्सट्रीमली, कुछ भी डिफिकल्ट, हार्श या कुछ इस तरह का वर्ड यहाँ पर आएगा. सो दैट इज ऑप्शन 4 हार्श. सिग्निफिकेंट नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉट मेकिंग सेंस हियर. एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट नहीं होता है. आप सिर्फ बोलेंगे सिग्निफिकेंट, मतलब कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसको आप सिग्निफिकेंट बोलते हैं. तो सिग्निफिकेंट के साथ आप एक्सट्रीमली नहीं लगाएंगे. ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन 4 आ जाएगा. harsh punishment on suspect companies without giving them an. अब an के बाद क्या आना चाहिए? vowel. ठीक है, vowel से starting word या vowel sound से starting word. ठीक है, an, inadequate, insufficient या adequate. अब यहाँ पे क्या है? without giving them an. इनएडिक्वेट और इनसफिशिएंट आप डालोगे तो विदाउट और इन, ये क्या हो गए? ये आपके डबल नेगेटिव्स हो गए, राइट. तो आप इस तरह नहीं लिखते हैं. या तो आप विदाउट गिविंग देम एन एडिक्वेट लिखेंगे या आप लिखेंगे गेव देम एन इनएडिक्वेट चांस या इनसफिशिएंट, इस तरह से लिखेंगे. जहाँ विदाउट आ गया दिस इज फर्स्ट नेगेशन, उसके साथ आप इन नहीं डालेंगे. ऐसे ही नॉट नहीं डालेंगे. ठीक है, ये बात आप याद रखें. दो नेगेशन इकट्ठा नहीं यूज होते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ क्या होगा? विदाउट गिविंग देम एन एडिक्वेट चांस. ओके, क्यों? क्योंकि वॉवल साउंड आना चाहिए और डबल नेगेटिव्स नहीं हो सकते हैं. सो फर्स्ट 2 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. एडिक्वेट इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट. Adequate chance to explain their positions smacks of heavy-headedness. All right. Now it says the economic cost of freezing the trading of shares of what? कैसी companies? Popular कि unpopular? और fanatical क्या होता है? Fanatical मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं अपनी आइडियोलॉजीज को लेके, है ना. विम्सिकल मतलब जो बहुत फैंसी करते हैं आइडियाज वाले. ठीक है, और फेल्ड कंपनीज की बात नहीं हो रही है क्योंकि ये कंपनीज कैसी हैं? द ट्रेडिंग शेयर्स ऑफ डैश कंपनीज आर नॉट कमेंसुरेट विद द पर्पटेड बेनिफिट्स ऑफ सच एक्शंस. मतलब कंपनीज कैसी हैं? कंपनीज आर एक्चुअली फेमस, तभी उनके जो शेयर्स वगैरह हैं ये सब चल रहे हैं, राइट. सो इट इज पॉपुलर इज द करेक्ट आंसर. अनपॉपुलर होता तो इन सब के शेयर्स इतने नहीं सेल आउट हो रहे होते. सो द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट? ऑप्शन 2. तो इस तरह हमें सॉल्व करना है. थोड़ा दिमाग भी लगाना है, थोड़ी ग्रामर भी लगानी है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, राइट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज popular companies are not commensurate with the purported benefits of such action. all right, अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? While the tribunal order has brought some fairness to the entire dash, entire what?
क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, मतलब कि जो जो आगे आपके पूरे स्टेप्स चल रहे हैं, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज प्रोसीडिंग्स, ऑप्शन 2. It says, while the tribunal order has brought some fairness to the entire proceedings, SEBI's action will deal a blow to its dash among investors. What among investors? Its credibility among investors. किसकी? क्योंकि क्या बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल का कुछ ऑर्डर आया था तो इंटायर जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें कुछ फेयरनेस दिख रही थी, बट सेबी का जो एक्शन है उसमें इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर एक क्वेश्चन लग जाएगा सेबी पर. वाई? क्योंकि ऐसा लगेगा कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर को अगर वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं, सो मे बी सेबी इज नॉट एन अनबायस्ड रेगुलेटरी बॉडी. ओके, सो इसीलिए क्रेडिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर. लाइबिलिटी क्या होता है, यानी कि इसका जो देनदारी है, लाइबिलिटी जो इनको देना है, राइट. क्रूशियल मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्प, मदद. स्टैंडिंग मतलब उसकी पोजीशन क्या है, राइट. बट यहाँ पे क्रेडिबिलिटी इज द करेक्ट यूसेज बिकॉज इट इज अबाउट कि वो उसकी कितनी करेक्टनेस है और कितनी वर्थ है. इज इट उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है. सो इट इज अबाउट वैल्यू, इसीलिए क्रेडिबिलिटी आएगा एंड करेक्टनेस की ज़्यादा बात है, राइट. सो इस तरह हम अपने आंसर सॉल्व करेंगे इवन इन आवर एग्जाम. और यहाँ पे क्योंकि वन वर्ड गिवन है, मे बी दैट यू आर गिवन सम फ्रेजल वर्ब्स. ओके, मे बी आपको 2 या 3 वर्ड्स गिवन हो. फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, आई होप आप सबको पता है. अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग तरीका देखने का कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं. फ्रेजल वर्ब्स वो होते हैं जिसमें होता है एक वर्ब प्लस क्या होता है, प्लस होता है आपके पास कोई और पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, वर्ब एंड सम अदर पार्ट ऑफ स्पीच. तो कुछ भी हो सकता है, या तो प्रेपोजिशन हो जाएगा या कोई भी अदर पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा आपका, तो वो आपका फ्रेजल वर्ब हो जाता है. ऑलराइट, तो ये बात आप याद रखना कि ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं, राइट. तो ये हमारा कोई एक सिंपल सा क्लोज पैसेज है. ऐसे ही आपको एग्जाम में आता है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है. इट इज़ वेरी वेरी डूएबल. ऑलराइट, बस आपको थोड़ा मतलब समझना है, कॉन्टेक्स्ट समझना है, एंड फिर धीरे धीरे आपको अपना सॉल्व करते जाना है, राइट. अब एक और ऐसा देखते हैं. वन मोर सच पैसेज इज हियर. इट सेज the current Prime Minister's Liberal Democratic Party has dashed a resounding victory for a third term. हाँ, तो विक्ट्री क्या होती है बताएं. जॉटेड क्या होता है, नोट डाउन करना, ठीक है. सो जॉटेड इज नॉट करेक्ट, नोट डाउन नहीं हो रही है विक्ट्री, ठीक है. डॉटेड क्या होता है, डॉटेड मतलब जिसमें बहुत सारे डॉट्स हों, तो दैट इज ऑल्सो नॉट द आंसर. तो ये भी सही आंसर नहीं है, ये भी सही आंसर नहीं है. रेस्क्यूड क्या होता है, मतलब बचाना, तो विक्ट्री को रेस्क्यू नहीं करा जाता है, दैट इज रॉन्ग. रेस्क्यू नहीं बोलते हैं, ठीक है. और क्या होता है, गेंड बोलते हैं क्या विक्ट्री को, जब पहले ही विक्ट्री मिल गई है तो विक्ट्री इज इन इटसेल्फ अ गेन, राइट. सो गेन्ड अ विक्ट्री ऐसा नहीं बोलते हैं, इसे सिक्योर्ड अ विक्ट्री, सिक्योर्ड अ पोजिशन, अ विक्ट्री, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 2, secured a resounding victory for a third term in the poll to the lower house of the country's diet. The development bucks the recent dash in advanced economies of incumbents being returned with much reduced margins. तो यहाँ क्या कह रहा है, the development bucks the recent dash in advance. So recent क्या होगा, recent क्या होगा, वे होगा, होल्ड होगा, क्या होगा, थिंक लिटिल. द डेवलपमेंट बक्स, अच्छा बक्स का क्या मतलब हुआ, जब भी कह रहे हैं द डेवलपमेंट बक्स, बक्स का क्या मीनिंग हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बक, एनीबडी. ओके, सो
बक एक्चुअली इट मीन्स एक तो होता है किसी को बकअप करना, दैट इज टू चीयर समवन अप, राइट? सो दैट इज डिफरेंट, वो एक अलग वर्ड है। और एक बक होता है कि एक तो एनिमल होता है बक, राइट? जिसको हम आप मेल ऑफ अ रेनडियर, आई थिंक रेनडियर, एंटेलॉप्स, इनके मेल को बक कहते हैं, ठीक है? और एक आपका बक होता है जिसका मतलब होता है अपोज करना या किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना, राइट? सो ये जो डेवलपमेंट है उसके बारे में कह रहे हैं, ये डेवलपमेंट अपोज करती है, कॉन्ट्रडिक्ट करती है जो रीसेंट क्या है। अब हमें देख लेते हैं, रीसेंट वे नहीं होगा, रीसेंट ट्रेंड, राइट? ड्रामा नहीं होगा। क्यों? द रीसेंट डैश इन एडवांस्ड इकोनॉमीज ऑफ इनकम्बेंट्स। व्हाट आर इनकम्बेंट्स बीइंग रिटर्न्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्बेंट्स? अब देखिए, कभी भी ना हम चाहे आरसी कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ पैसेज। आप ऐसे पढ़ लेंगे और इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, तो आपको लगेगा कि पैसेज कैसे लिखा है, इसकी लैंग्वेज ही बेकार है, शायद लिखने का तरीका ऐसा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे, हमें उन कुछ कुछ वर्ड्स का मीनिंग अगर पता चल गया ना, तो पैसेज बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, बक्स का मतलब है कॉन्ट्रडिक्ट करना, राइट? और यहाँ पे इनकम्बेंट्स का क्या मतलब है? इन एडवांस्ड इकोनॉमीज ऑफ इनकम्बेंट्स बीइंग रिटर्न्ड, ठीक है? तो इनकम्बेंट क्या होता है कि जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है? इकोनॉमीज ऑफ इनकम्बेंट्स बीइंग रिटर्न्ड विद मच, और इनकम्बेंट्स मतलब वो लोग जो वहाँ पे एक्चुअली हैं, वहाँ पे प्रेजेंट हैं। और एक इनकम्बेंट्स का मतलब होता है कि ऑब्लिगेटरी, जो कोई नेसेसरी है एज अ ड्यूटी। सो यहाँ पे है, तो यहाँ बोला जा रहा है, द डेवलपमेंट बक्स द रीसेंट ट्रेंड इन एडवांस इकोनॉमीज ऑफ इनकम्बेंट्स बीइंग रिटर्न्ड विद मच रिड्यूस्ड मार्जिन्स। यानी कि जो भी आपके ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी आपको नेसेसरी आपका जो भी आना चाहिए एसेंशियल चीज़ें, उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो उसको आपका जो उसका जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड को ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो करंट अभी पोल के रिजल्ट आए हैं वो, ठीक है? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 1, ट्रेंड। ओके, तो अब आगे चलते हैं। The next blank is number 9. It says a vindication of his decision to call elections a year ahead of schedule. The outcome increases the, yes, a vindication of his decision to call elections a year ahead of schedule. The outcome increases the current Prime Minister's prospects of winning a third term next year as leader of his Conservative Party and dash the country's longest serving premier. And what? And वो क्या करेंगे? if the person becomes, if this person becomes the PM again for the third term, then he will be doing what? He will be serving the country's or sorry, he will become the country's longest serving premier, right? So will be becoming is the correct answer here. ओके, क्योंकि वो क्या करेंगे, आप हिंदी में भी देखो, यहाँ कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ विनिंग अ थर्ड टर्म नेक्स्ट ईयर एज लीडर ऑफ हिज कंजर्वेटिव पार्टी एंड व्हाट, एंड बनेंगे, और वो बनेंगे क्या? कंट्री के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रीमियर। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर वो सर्विंग, क्योंकि सर्व यहाँ पे पहले ही आ गया, ठीक है? तो सर्विंग नहीं हो सकता। होल्डिंग मतलब कि वो बचा के रखेंगे, पर एक्चुअली वो ये पोजीशन लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रीमियर ये उनको तब मिलेगी जब वो जीतेंगे, तो अभी होल्डिंग नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है? और अचीविंग भी नहीं आएगा क्योंकि सिंपल बनने की बात हो रही है, ठीक है? एंड बिकमिंग, क्योंकि वो बनेंगे, एंड बिकमिंग द कंट्रीज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रीमियर, राइट? प्रीमियर मतलब कि जो कुछ एलीट पोजीशन पे सम पर्सन है उसको प्रीमियर बोलेंगे। विंडिकेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है विंडिकेशन ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडिकेशन? एंड यू शुड कीप ऑन थिंकिंग कि इसका मतलब क्या होता है विंडिकेशन का, या कोई भी ऐसा वर्ड आए उसको क्या बोलते हैं, बोलिए। तो मतलब कि अगर कोई चीज़ जो है, विंडिकेशन ऑफ हिज डिसीजन मतलब कि प्रूफ या क्लैरिटी, मतलब कि क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिया, उस चीज़ की क्लैरिटी जो है वो इस चीज़ से मिलेगी, सो एंड सो, ऐसे
ऐसी इस तरह से बोला है, ठीक है। सो यहाँ पे 9th में करेक्ट आंसर क्या है आपका, बिकमिंग, ऑप्शन 4, द कंट्रीज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रीमियर। इट सेज द डीपर इम्पोर्ट ऑफ द वर्डिक्ट however lies in the requisite two-thirds mandate to press ahead with plans to dash the country's US-backed post-war pacifist constitution. Okay, so क्या कह रहे हैं, plans to dash the countries, क्या, what the countries, ये वाला भी देखिए, रिवाइज, हाईलाइट, पॉइंट, व्हाट। तो यहाँ पे बोलेंगे कंट्रीज यूएस बैक्ड पोस्ट वॉर पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो इट सेज, अब मतलब देखते हैं इसका, ये कह रहे हैं डीपर इम्पोर्ट ऑफ द वर्डिक्ट लाइज इन द रिक्विजिट 2/3 मैंडेट टू प्रेस अहेड विद प्लान्स टू डैश द कंट्रीज यूएस, मतलब कि वो चाह रहे हैं कि यूएस बैक्ड पोस्ट वॉर पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी उनका पोस्ट वॉर का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, जो यूएस से बैक्ड है, उसको वो कुछ करना चाह रहे हैं। वो क्या करना चाह रहे हैं, रिवाइज करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे 10th में जो है वो आएगा रिवाइज द कंट्रीज यूएस बैक्ड पोस्ट वॉर, यानी कि वो चाह रहे हैं एक्चुअली, जो भी ये डिसीजन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि लाइज इन द रेक्यूजिट 2/3 मैंडेट्स, तो मतलब कि 2/3 मैंडेट चाहिए जो विच विल, जिसकी मदद से वो रिवाइज हो जाएगा क्या, कंट्री का यूएस बैक पोस्ट वॉर पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनको पसंद नहीं आ रहा है, टू डैश करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, टू व्हाट, जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हैं अभी की, आजकल, उन रियलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, राइट। सो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा चेंज आए, राइट। सो इसीलिए रिफ्लेक्ट यहाँ पर आएगा, टू रिफ्लेक्ट करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। तो इसमें ये सारे जो ऑप्शंस हैं अब्जॉर्ब नहीं होंगे, मिराज नहीं होगा। मिराज क्या होता है कि आपको कुछ फेक दिख रहा है, दैट इज योर मिराज, गलत दिख रहा है, दैट इज मिराज। हाँ, एंड कॉल भी नहीं आएगा, इट इज नॉट फिटिंग हियर, एंड रिफ्लेक्ट इज द ओनली आंसर दैट फिट्स हियर, राइट। ओके, तो वो कि कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज़ दिखानी चाहिए कि करंट रियलिटीज़ क्या हैं वर्ल्ड की, राइट। इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन उनको चाहिए। नाउ द डैश ऑफ सिक्योरिंग सच अ लार्ज मेजॉरिटी, व्हाट ऑफ सिक्योरिंग, द what prospect of securing, prospect means the chances of securing such a large majority had seemed in doubt given the public's skepticism over amending the charter. Charter क्या होता है, charter मतलब some जो ऑर्डर होता है, अथॉरिटी जो ऑर्डर देती है, एक उसको चार्टर बोलते हैं, और एक फ्लाइट होती है, राइट, प्राइवेट फ्लाइट, उसको चार्टर बोलते हैं, राइट। सो और स्केप्टिसिज्म क्या होता है, मतलब कुछ डाउट्स, अगर किसी के कुछ डाउट्स हैं उसको हम बोलते हैं दैट यू शोइंग स्केप्टिसिज्म ओवर समथिंग, ठीक है। ओवर अमेंडिंग द चार्टर, डैश विद अ ड्रॉप, ये देखें, व्हाट विद अ ड्रॉप इन द प्राइम मिनिस्टर्स पर्सनल रेटिंग। अब एक चीज बोली और यहाँ पे दूसरी चीज बोली, तो दोनों चीज का क्या कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब कपल्ड विद, ओके, मतलब दो चीज को मिला के अगर कुछ बोल रहे हैं, वन थिंग कपल्ड विद अनदर थिंग, ओके, इसी इनकी वजह से तो ये जो लार्ज मेजॉरिटी है ये आना एक डाउट लग रहा था, ओके। सो कपल्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर द 13th ब्लैंक, राइट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं। इट सेज नाउ हैविंग क्लियर्ड दैट हर्डल he would hope to dash support to accord legal status to the country's self-defense forces. तो क्या कह रहे हैं, he would hope to support क्या किया जाता है इन ऑप्शंस में से, गार्नर किया जाता है, ठीक है, मतलब कि लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। So the correct answer here is option 2, garner support to accord legal status to the country's self-defense forces. Okay, so इस तरह आप उसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम ये पढ़ते गए, धीरे धीरे हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ विक्ट्री की बात हो रही है, एक पार्टी जीती है, फिर बताया कि क्यों वो विक्ट्री
पहले तो डाउटफुल थी क्योंकि बहुत बड़ा मैंडेट चाहिए था, 2/3 मैंडेट चाहिए था, और वो डिफ़िकल्ट इसलिए लग रहा था क्योंकि उनकी कुछ कुछ स्केप्टिसिज्म था लोगों को, क्योंकि उन्होंने चार्टर अमेंड किया था, और उनका जो प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल रेटिंग्स थी उसमें ड्रॉप आया था। तो इन दो रीजंस की वजह से लोगों को डाउट हो रहा था कि विल दिस पार्टी अगेन विन द इलेक्शंस और नॉट, बट द पार्टी केम विक्टोरियस, दे वन द इलेक्शंस, और अब वो आगे बोल रहे हैं अब क्योंकि वो मेजॉरिटी का हर्डल क्लियर हो गया है। नाउ द प्राइम मिनिस्टर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गार्नर द सपोर्ट, उनको सपोर्ट इकट्ठा करना है टू अकॉर्ड लीगल स्टेटस to the country's self-defense forces, leaving intact the no-war provisions in the 1947 Constitution. ठीक है, सो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। और अब हम देखेंगे अनदर पैटर्न जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द अदर पैटर्न, और इस पैटर्न में क्या है, आपको ये एक जो वर्ड है ब्लैंक के साथ पहले ही गिवन होगा, right? And then you have to see that what is the correct answer, as in if this word will fit here or not. अगर ये word fit हो रहा है, you will choose the option 5, no replacement required, right? but अगर ये word fit नहीं हो रहा है, तब आप देखेंगे कि कौन सा वाला यहाँ से is the best fit, all right? तो अब देखें, इट सेज, और ये वाला जो पैटर्न है ये काफ़ी हमने पहले भी देखा है, और मतलब पिछले 3-1 साल पहले शायद इंट्रोड्यूस हो गया था, और अब भी इट हैज़ बीन कमिंग। सो आप इस पैटर्न से मतलब थोड़ा अवेयर तो हो ही जाइए, और फिर प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें, तो IXAMBI की वेबसाइट पर ऐसे मॉक्स में हमने बहुत क्वेश्चंस डाले हैं, तो वो भी आप आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ इट सेज द गवर्नमेंट इज प्रेजेंटिंग टू कम आउट, तो with a cross border insolvency resolution so and so, तो क्या कह रहे हैं, the government is presenting to come out with, तो मतलब वो लाना चाह रहे हैं कुछ, तो presenting नहीं होगा, वो तैयारी कर रहे हैं कुछ लाने की, तो they are preparing, all right? So option 4 is the correct answer here. It would say the government is preparing to come out with a cross border insolvency resolution framework based on the UNCITRAL model law, and is proposed to be made what, applicable या available, is proposed to be made available for both corporate debtors as well as personal guarantors to such debtors, right? So the correct answer here is then option 1, okay, available to such debtors, right, for so and so, okay. Now next one says the Corporate Affairs Ministry, which is implementing the Insolvency and Bankruptcy Code, has dash comments, तो comments क्या किए जाते हैं, thought comments की comments seek किए जाते हैं, okay, तो बोलेंगे has sought comments on the draft framework till 15th of December 15th, right? तो अभी तक क्या बोला गया है यहाँ पर कि गवर्नमेंट तैयारी कर रही है, प्रिपेयर कर रही है टू ब्रिंग व्हाट, अ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क, जो कि अनसाइट्रल मॉडल लॉ पर बेस्ड होगा, ये कोई लॉ है, ओके, एंड इज प्रपोज टू बी मेड, और वो अवेलेबल होगा किस किस को, कॉर्पोरेट डेटर्स एज वेल एज पर्सनल गारंटर्स टू सच डेटर्स, ओके। अब आगे देखिए, द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, ओके, ये हमने देख लिया, ने सीक किया है कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क टिल December 15, okay. Now it says broadly cross border insolvency process pertains to those debtors having assets and creditors overseas, ठीक है, मतलब ये उस प्रोसेस की बात हो रही है कि कंपनी की अगर दो कंट्रीज के बीच में, यानी कि इंडिया और किसी और कंट्री के बीच में अगर कुछ भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सो उस केसेस में जब इंसॉल्वेंसी की बात आ जाती है, यानी कि कोई कंपनी पे नहीं कर पा रही है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो रखी है, बाहर की कंपनी की बात हो रही है,
तो उस केसेस में जो है उसके लिए हाँ ये कंट्री गवर्नमेंट जो है वो लॉ लाना चाह रही है, राइट। अब वो यहाँ पे एक बात और बोली है कि ब्रॉडली क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पर्टेन्स टू दोज डेटर्स हैविंग एसेट्स एंड क्रेडिटर्स ओवरसीज। ठीक है, तो मतलब अगर एसेट्स और क्रेडिटर्स किसी के बाहर होंगे, ऐसे डेटर्स को पे अभी जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उनके लिए लागू होता है। ठीक है, and it says according to the ministry the need for having robust institutional arrangements to deal with cross border insolvency issues has dash momentum. Firstly यहाँ पे past tense आएगा, make is incorrect, okay, it should be made, यानी कि past tense की फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज मोमेंटम क्या किया जाता है, मोमेंटम बढ़ाया जाता है, गेन किया जाता है, राइट। सो हैज गेन्ड मोमेंटम इन वेरियस jurisdictions particularly under the aegis of ancestral model law during the last few decades. Okay, so यहाँ पर आपका 4 में गेन आएगा, all right. Now the ancestral model law on cross-border insolvency 1997 is the most widely accepted legal framework to deal with cross-border insolvency issues. ठीक है, तो साफ साफ बोला गया है कि जो ये अनसाइटल मॉडल लॉ है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी 1997 का, जिस ये पूरा नाम है, वो सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड लीगल फ्रेमवर्क है टू डील विद क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इश्यूज। ये एक स्टैंडर्ड है, ओके। The law provides a legislative framework that can be adopted by countries with modifications to suit the domestic context of the dash jurisdiction, entertaining jurisdiction या enacting jurisdiction। ठीक है, enacting मतलब जो भी jurisdiction काम कर रहा है उस टाइम पर, उसका enacting jurisdiction का जो context होगा उसको सूट करने के लिए modifications उसमें लाई जा सकते हैं, right? So what is the meaning of the word enthralling? enthralling का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है उसको हम enthralling कहते हैं, राइट। सो अटेंशन बहुत ज़्यादा कैच कर लिया, कोई चीज़ बहुत फैसिनेटिंग है, उसको वी विल से enthralling। ओके, तो ये एक पैटर्न है फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और IXAM-B के मॉक्स में आपको ये वाला पैटर्न देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। सो यू कैन गो एंड प्रैक्टिस मॉक्स एट IXAM-B.com। ऐसे और मॉक्स और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे विद आपकी इंग्लिश की होगी कल भी, और उसमें वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट SBI PO क्वेश्चंस। ठीक है, जो बैंक PO के लिए SBI PO हो या आपका IBPS PO हो, इंग्लिश सेक्शन में आप कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, और आई विल ऑल्सो टेल यू दैट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप ग्रामर से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप ग्रामर के बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आप ये मत सोचना कि हैविंग द नॉलेज ऑफ ग्रामर इज द मेन थिंग टू क्लियर द कट ऑफ क्लियर आप विदाउट ग्रामर भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप एक्सेल करें तो फिर एक्सेल करने के लिए तो हमें पूरी नॉलेज होनी ही चाहिए, अब चाहे इंग्लिश की बात हो चाहे किसी और सब्जेक्ट की बात हो। सो आई विल नॉट से कि आप कोई भी एकदम ऐसा सीरीज देखते रहो, ये सब चीज़ें, इन सब से आप एकदम टॉप मोस्ट रिजल्ट्स ले आओगे। नो, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर अच्छे से करनी पड़ेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद ही आप एक्सेल कर सकते हैं। हाँ, कट ऑफ क्लियर आप इन सब चीज़ों से कर सकते हैं, जो भी आपको जितना कंटेंट आपको यूट्यूब में मिलता है या रोज़ के 1-2 घंटे देके कट ऑफ क्लियर हो जाता है, बट विदाउट ग्रामर आप अपना एक्सेल करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट कट ऑफ कैसे क्लियर करना है, अगर आपकी ग्रामर भी थोड़ा वीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
कि आपको कौन से क्वेश्चन स्किप करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 30 के 30 अटेम्प्ट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड इट इज़ नॉट एडवाइज्ड एक्चुअली। अब तो वो 30 क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं सारे तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा क्या हो सकता है, आप सारे अटेम्प्ट करें, ठीक है। बट अगर आपको नहीं आ रहे हैं, एक्यूरेसी इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम यहाँ पर एक्चुअली अपने मैक्सिमम मार्क्स जितना हम ला सकते हैं हम वो ही लेंगे। और वो कैसे लेंगे, जब हम एक्यूरेट हैं अपने आंसर्स में, जो हमने मार्क किया है वो सब हमारा सही है। तो कल हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि किन क्वेश्चंस में एक्यूरेसी होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, राइट। तो कल का सेशन ज़रूर अटेंड करें और उस सेशन में यू विल गेट टू लर्न अबाउट द ओवरऑल अप्रोच ऑफ द इंग्लिश सेक्शन जो आपको फॉलो करनी चाहिए। सो आज एक क्विक प्रैक्टिस सेशन था आपके क्लोज पैसेज का, और ध्यान रखें दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपको आएगा ही आएगा, चाहे आपके प्रीलिम्स में आ जाए चाहे मेंस में आ जाए। सो keep on practicing, and there are lot of close passage questions in our on our website in our mocks, वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ डू, बिकॉज तब आपको एकदम पता चलता रहेगा कि हम लोग कौन सी वीडियोस डाल रहे हैं। और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और एग्ज़ाम क्योंकि इतना पास आ रहा है, यू डू नॉट वांट टू मिस एनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो हम आपको वीडियोस के थ्रू देंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए, राइट। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको असिस्टेंस चाहिए, थोड़ी हेल्प चाहिए, तो आप आकर हमारी iExamB वेबसाइट पे देखें। देयर इज़ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट एंड ऑल्सो यू कैन वॉच सम ऑफ आर डेमो क्लासेस जो हम अपने कोर्स में आपको देते हैं। उनकी एक कुछ डेमो वीडियोस आपको देखने को मिल सकती हैं, तो वेबसाइट पे आके आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। क्लोज टेस्ट आपको ऑलमोस्ट एवरी मॉक में मिल जाएगा। iExamB के मॉक टेस्ट पे जाएं एंड उसमें देर आर सो मेनी मॉक टेस्ट, सो मेनी क्वेश्चन, लैक्स ऑफ क्वेश्चन। तो वहाँ जाके आप प्रैक्टिस करें एंड उससे आपका बहुत अच्छा एक बेस बिल्ड हो जाएगा। So this is all friends, and do prepare well for your exams. Do join tomorrow's session if you want to know कि कौन से questions हैं जो आपकी accuracy को spoil कर देते हैं, इसलिए उनको you should not attempt. Okay, so definitely attempt tomorrow's session. We'll see you tomorrow. Till that, visit iExamB website and practice all the mocks for absolutely free.